معذرت کے ساتھ ہر بیوٹی پارلر کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں آج کل بیوٹی پارلر جو ہے وہ زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، وہاں سے باضابطہ طور پہ برائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے، عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں آ رہی ہے۔ صنف نازک کہلانے والی میری بہنوں، آخر تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ تم لوگ چپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو؟ اللہ کے عذاب کو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اپنا برا کرنے والی میری بہن، تو اپنی زندگی کو تباہ نہ کر، تو اپنی زندگی کو برباد نہ کر۔ یہ 4 دن کی چاندنی کے لیے تو نے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرنا؟ تو نے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کے ایک گڑھے سے، جہنم کے ایک کنویں سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آتی تھی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دردناک چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ ان کی آہو فغاں کیوں ہے؟ ان کی آہو بکا کیوں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں کے ساتھ سنگھار کیا کرتی تھی۔ جب یہ بنتی سنورتی تھی تو ناجائز طریقے سے بنتی سنورتی تھی، ناجائز چیزوں کا استعمال بننے سنورنے میں کرتی تھی، اس لیے آج ان پر یہ عذاب کیا جا رہا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹوں کے حسن کے لیے یا کسی کی تعریف کے لیے بولو میری بہنوں، تم ولیمے میں اسی لیے سنور کر کے جاتی ہو نا، تم شادیوں میں اسی لیے بن کر جاتی ہو نا کہ تمہاری سہیلیاں، رشتہ دار، تمہاری جو ہے وہ تعلقات کی خواتین دیکھ کر کہے دیکھو فلاں کی بہن کتنی اچھی لگ رہی ہے، دیکھو فلاں کی بیوی بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے نزدیک اس دور میں اگر سب سے بڑی گالی کوئی ہے تو وہ کسی عورت کو ہیروئن کہنا گالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہیروئن کا مطلب زنا کرنے والی، ہیروئن کا مطلب ناچنے والی، ہیروئن کا مطلب جسم کو بیچنے والی۔ حیرت کی بات یہ ہے اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو جسم فروش ہے تو وہ اس سے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب کوئی تمہیں ہیروئن کہتا ہے تو تم جو ہے وہ گردن کو جھرجھری دیتی ہو، اتراتی ہو، مسکراتی ہو، ایک دوسرے سے تالیاں لیتی ہو، او ہو میری تعریف کی تو حد کر دی کہ میں ہیروئن جیسی لگ رہی ہوں۔ ارے میری بہن، ہیروئن تو زانیہ کا نام ہے، ہیروئن تو شرابیہ کا نام ہے، ہیروئن تو جسم کو بیچنے اور فروخت کرنے والی کا نام ہے۔ بلکہ فاحشہ جتنی بدکار نہیں ہوتی اس سے زیادہ ہیروئن بدکار ہوتی ہے، کیونکہ فاحشہ جب زنا کرواتی ہے تو 4 دیواری میں چھپ کر زنا کرواتی ہے، اور ہیروئن جب زنا کرواتی ہے تو کمرے کے سامنے زنا کرواتی ہے، اور اس کے پوسٹر لگتے ہیں، اس کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اتنی بدترین عورت کا ٹائٹل لے کر کے تم اتنی خوش ہوتی ہو؟ ارے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی ولیمہ میں شان سے جاؤں کہ کوئی مجھے دیکھ کر پکار اٹھے تو بالکل کنیز فاطمہ لگ رہی ہے، تیری زندگی کو دیکھ کر کے نبی کی شہزادی کی زندگی یاد آ گئی ہے، تیری زندگی کو دیکھ کر کے ام المومنین اما عائشہ کی زندگی یاد آ گئی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، تمہاری سوچ بدل گئی، تمہاری فکر بدل گئی، تمہارا انداز زندگی بدل گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، 2 جملوں کا خراج وصول کرنے کے لیے جب تمہیں اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تھوڑا اپنے آپ پہ رحم تو کرو۔ اللہ اکبر، ہمارے بچپن میں جب اسٹو جلائے جاتے تھے تو اسٹو کے اندر ایک پین لگائی جاتی تھی، اگر وہ پین عورتوں کو چبھ جاتی تو عورتیں چیخ پڑتی تھی۔ ایک پین اگر کوئی عورت کو چبا دے تو عورت چیخ پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت اس لیے بن سمر کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ مرد دیکھ کر کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ایسی عورتوں کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔
मेरी बहनों तुम्हें क्या हो गया है? तुम सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, दुनिया की फैशन में मुब्तला होकर के तुमने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब के हवाले कर दिया। मेरी बहनों, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह हल्के से हल्का अज़ाब दे तो भी दुनिया का कोई इंसान मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने करोड़ों गुनाह, अपने लाखों गुनाह, अपने हजारों गुनाह जो तुम कर रहे हो, इसका अंजाम तो देखो। कुरान कहता है व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए। यह एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना, आप ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं दुनिया का सर्वे पेश कर रहा हूं। आजकल औरतें बनती हैं, संवरती हैं, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों से करती है, और कभी कभी तो अल्लाह अकबर नफसानी ख्वाहिशात यहां तक पहुंचाती है कि बाइक पर घूमने के चक्कर में किसी लड़के के हाथों आबरू फरोख्त की जाती है। अल्लाह अकबर खूबसूरत जेवर के चक्कर में, कभी कभी अल्लाह अकबर अपनी पसंद की शादी के चक्कर में मर्दों के हाथों अपनी आबरू फरोख्त की जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, आबरू जो है लुटाने वाली औरत का अंजाम क्या है वो तो बाद में। अच्छी तरह याद रखना, जो बदकार लोगों की सिर्फ हिमायत करे, सिर्फ हिमायत करे, उनका क्या अंजाम है। बदकार लोगों की हिमायत करने वालों का अंजाम क्या है, थोड़ा इस पर तवज्जो करें। ए खातून जन्नत की कनीजों, देखो नबी की बीवी, नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती। नबी की बीवी मुशरिक तो हो सकती है लेकिन कभी बदकार नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि शिर्क हर मजहब में मायूब नहीं है, लेकिन बदकारी हर मजहब में मायूब है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला हर नबी की बीवी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाता है। बल्कि ज़लीखा जो है वो अजीज मिस्र के निकाह में पहुंची तो अल्लाह ने अजीज मिस्र से वो ताकत ही सल्ब कर ली कि वो इज़्दवाजी जिंदगी गुजार सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह में पहुंचने के बावजूद, इसलिए कि वो जनाबे यूसुफ की बीवी बनने वाली थी, हजरत ज़लीखा की आबरू की यूं हिफाजत फरमाई। लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा करें, नबी की बीवी को इतना तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाता है कि नबी के निकाह में आने से कबल भी अज़वाजे मुतहरात जो है वो शैतानी ख्वाबों से महफूज रहती हैं। इतना तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाता है निकाह में आने से पहले भी। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम का दौर, अल्लाह अल्लाह बदकारी, लोग बदकारी करते थे, बदफेली करते थे। जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदफेली बदकारी मत करो वरना तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। उसके बाद कौम ने कहा लूत तू बड़ा पारसा बनता है, याद रख हम तुझे बस्ती से निकाल देंगे, बस्ती से बाहर कर देंगे। अल्लाह ने जनाबे लूत से कहा ए लूत आप बस्ती से बाहर चले जाएं, आप बस्ती से बाहर निकल जाएं अपने खानदान को लेकर के। मेरी बहनों जरा दिल के कानों से सुनना, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर वालों के दरमियान मीटिंग की और फरमाया देखो हम अपना वतन छोड़कर, शहर छोड़कर जा रहे हैं, कौम पे अजाब आने वाला है, लेकिन कोई पलट करके मत देखना। जनाब लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान को लेकर के चले और जब निकले तो कौम पर अजाब आया, कौम पे पत्थर बरसे उनकी बदकारियों की वजह से। सबसे आखिरी में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, सबसे आखिरी में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उस बीवी के दिल में कौम की मोहब्बत थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब अजाब की आवाज सुनी तो पीछे पलट करके कहा हाय मेरी कौम। बस इतना कहना था कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर भी पत्थर गिरा और वो भी हलाक हो गई। आपसे पूछना चाहता हूं कि उसने बदकारी नहीं की थी, लेकिन बदकार लोगों को कि उसने इस तरह हिमायत की थी, हाय मेरी कौम, बदकार को मेरा कह करके पुकारा और उनकी हलाकत पे अफसोस किया। कुदरत ने नबी की बीवी होने के बावजूद उसको भी हलाक कर दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जो किसी बदकार को मेरा कहकर पुकारे उसकी हिमायत कर दे, उससे हमदर्दी करे, नबी की बीवी होने के बावजूद कुदरत उसको हलाक कर
देती है तो जो खुद बदकारी करे उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज क्या हो गया है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को, मुसलमानों की बेटियों को क्या हो गया है। अल्लाह अकबर। कल तक के इन बेटियों का हाल ये था, कल तक इन बच्चियों का हाल ये था, इनकी रातें मुसल्ले पर गुजरा करती थी, इनका दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों में गुजरा करता था। अल्लाह अकबर। तस्बीह व तहलील इनका मशगला था, रब तबारक व तआला की फरमा बरदारी इनकी पहचान थी, तिलावत कुरान के नगमे इनकी जबानों पे जारी थे। लेकिन आज क्या हुआ कि बारीक और पतले लिबास पहन करके खवातीन अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए बाहर निकलने के लिए बेचैन और बेकरार है। आओ आओ, जो औरतें पतले लिबास पहनती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मुफ्ती चार मिल्लत का उसके लिए फतवा क्या है। एक मर्तबा कुछ ऐसी औरतें थी जो बारीक और पतले लिबास पहनकर, पतले पतले दुपट्टे ओढ़ करके उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के घर आई। जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंची वो औरतें बारीक और पतले लिबास पहन करके, तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, क्या तुम मोमिन नहीं हो, क्या तुम मुसलमान नहीं हो। उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, मैं तो इतना जानती हूं जो औरत मोमिन होगी उसके बदन पे पतला लिबास नहीं होगा, और जिसके बदन पे पतला लिबास होगा उसका ईमान कामिल नहीं होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, देखा आपने हीरोइन की तरह लिबास पहनने वाली हो, अदाकारा की तरह लिबास पहनने वाली हो, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैंने लानती औरतों को अपने दौर में नहीं देखा, लेकिन अगर तो हो सके तो तुम देखोगे, या तुम्हारे बाद वाले लोग देखेंगे, या उनके बाद वाले लोग देखेंगे, या उनके बाद वाले लोग देखेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के लानती औरतों को देखा ना जाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लानती औरतें कौन है। हुजूर फरमाते हैं उनके बदन पर कपड़े होंगे मगर वो नंगी होगी, नंगी यानी इतने पतले लिबास होंगे कि जिस्म नजर आएगा, और उनके सरों पे बाल ऐसे बंधे होंगे जैसे बुकती ऊंट की कोहान, और वो मटक मटक कर इतरा इतरा करके चलती होंगी। जब ऐसी औरतों को देखना तो समझना ये लानती औरतें हैं, ये जन्नत में तो जा ही नहीं सकती, जन्नत तो दूर की बात है, इनको जन्नत की खुशबू भी मयस्सर नहीं आएगी। आज सरों पर बुकती ऊंट की तरह अपने बालों को सजाकर, बारीक और पतले लिबास पहनकर खवातीन इस्लाम का बाहर निकलना, और फिर उसके बाद मर्दों को अल-अयाज़ु बिल्लाह, आपकी बात नहीं करता, एक आम बात कर रहा हूं, दुनिया भर का जायजा आपके सामने पेश कर रहा हूं। लड़कियां खुद से ऑफर करती है कभी, और कभी मर्द ऑफर करते हैं तो उनके चक्कर में फंस जाती है, और फिर मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं हम लैला मजनू की तारीख फिर दोहरा देंगे, फरहाद और शीरीन की तारीख फिर दोहरा देंगे, और फिर हम जो है ये करेंगे और वो करेंगे। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, दिल पे लिखना, कौम की उन बेटियों के नाम ये मेरे दिल का दर्द वाला पैगाम है। अच्छी तरह याद रखना, आज मोहब्बतें खत्म हो गई है। कहां तू जो मजनू और जैवर लैला की बात करती है। पहली बात तो ये है कि लैला मजनू की दास्तान कोई दास्तान है ही नहीं, ये सिर्फ एक अफसाना है। रही बात जनाबे मजनू की, तो मजनू अल्लाह का एक मजजूब बंदा है, और लैला कोई औरत है ही नहीं, लैला का कोई वजूद है ही नहीं। ये जनाबे कैस थे जो मजजूब थे, जो रात दिन ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का कलमा पढ़ते थे। वो बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, तो लोगों ने ला इलाहा को सुन करके लैला लैला कहना शुरू कर दिया। ये कोई लैला है ही नहीं, ये ला इलाहा को लोगों ने न सुन करके सुना कुछ और बयान कुछ कर दिया, और लोग समझ गए कि देखो ये लैला मजनू की दास्तान है, ये लैला मजनू की दास्तान है। अफसाने अपनी जगह है, फलसफे अपनी जगह है, कहानियां अपनी जगह है, लेकिन जनाबे कैस एक मजसूब का नाम
नाम है, एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे का नाम है जिनको मजनू कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अकबर, मोहब्बतों की दास्तान गढ़ी जाती है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, फलों से लज्जत जाएगी, फूलों से खुशबू जाएगी, दिलों से मोहब्बत जाएगी। मेरी बहन आप जरा सोच तो सही, अगर कोई लड़का ये कहता है कि मैं तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए नई दुनिया बसा दूंगा, तेरे लिए ये करूंगा और वो करूंगा, मेरी बहन वो तेरे लिए जो है एक मकान खरीदने की औकात नहीं रखता, वो फटीचर, वो तेरे लिए क्या आसमान के तारे तोड़ करके लाएगा। याद रखना, नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला होकर नौजवान लड़कियों को फरेब देते हैं। भोली भाली बच्चियां शादी के चक्कर में या कभी किसी मामले में उनसे दिल लगा बैठती है, और फिर याद रखना मेरी बहनों, याद रखो, अगर उस बदकार के दिल में वाकई मोहब्बत होती, उसके दिल के अंदर वाकई मोहब्बत और प्यार होता, तो वो तुझ अजनबिया से क्यों मोहब्बत करता। 9 महीने तक जिस माँ ने उसको अपने पेट में रखा है वो उस माँ से मोहब्बत करता ना मेरी बहन। 2 साल तक के जिस माँ ने उसको अपना दूध पिलाया है वो उस माँ से मोहब्बत करता ना मेरी बहन। लेकिन याद तो रख, जरा सोच तो सही, वो तुझसे क्यों मोहब्बत करने लगा। उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि उसको तुझसे काम है। वो तेरी आबरू से खेलना चाहता है, वो तेरी आबरू को तबाह करना चाहता है, वो तेरी आबरू को तार तार करना चाहता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, किसी भी मर्द के कभी साथ झांसे में मत आना। आज के मर्द तितलियों से भी ज्यादा बेवफा है। जैसे तितली किसी फल फूल का रस चूस कर हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है, कभी उस फूल की तरफ रुख नहीं करती, उससे ज्यादा बेवफा आज के मर्द है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जिस तरीके से भौरा, अल्लाह अकबर, इतना बेवफा होता है कलियों के हवाले से कि एक मर्तबा वो रस चूस ले फिर कभी उधर का रुख नहीं करता। आजकल के मर्दों का भी हाल यही है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत का झांसा देंगे, प्यार का झांसा देंगे, आबरू से खेलेंगे और उसके बाद हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाएंगे। और अगर कभी शादी भी होना तो ये मोहब्बतों की शादी बहुत ज्यादा पायदार नहीं रहती, बहुत ज्यादा जो है वो ये टिकाऊ नहीं रहती। अच्छी तरह याद रखना, लव मैरिज अगर 100 शादियां हुई है तो उसमें से 2 लोग खुश हैं, बाकी के 98 लोग जो है वो नाकाम है, नाखुश है, आंखों में आंसू है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के मिस्ताक जिंदगी तबाह हो जाती है। और अगर चलो 2% अगर ये शादी कामयाब भी हो गई ना, ये दौड़ भाग की शादी, ये नाजायज और हराम अंदाज से शादी, तो जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर जो लोग भाग के शादी करते हैं, जो लोग मोहब्बत से शादी करते हैं, फिर उनके बच्चों को शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आते, उनके बच्चों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, बल्कि औरतें कहती है उसकी माँ तो भागकर शादी की थी, उसकी बेटी भी ऐसे ही होगी, उसके बाप ने तो भाग के शादी किया था, उसका बाप भी ऐसा है तो उसका बेटा भी ऐसा ही होगा। सोचो तो सही, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बच्चों को किस कदर तबाह करती है, तुम्हारे बच्चों को किस तरह रुलाती है, तुम्हारे बच्चों को किस तरह बेचैन करती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, खुदा के लिए ऐसा न करो। पसंद की शादी का इस्लाम में तसव्वुर इतना है कि तुम्हारे माँ बाप ढूंढे और पसंद तुम करो, ये नहीं कि तुम ही ढूंढ कर तुम ही पसंद करो, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, माँ बाप ढूंढे, रिश्तेदार ढूंढे और तुम पसंद करो। इसलिए कि अक्सर मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बहन अगर तू जूती खरीदने जाती है जो 1 साल के बाद फट जाएगी, फेंक दी जाएगी, तो जूती खरीदने के लिए तू 4 सहेलियों से मशवरा करती है, फिर जाकर तू जूती खरीदती है। 1 साल में जिस जूती को बदलना है उसको तू बगैर मशवरे के नहीं खरीदती, जिसे सारी जिंदगी के लिए अपना रफीक हयात बनाना है, शरीक हयात बनाना है, बगैर मशवरे के तुम कैसे फैसला अकेले कर लेती हो। याद रखना, ये तबाह कुन फैसला है, ये बर्बाद करने वाला फैसला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, ये बेपर्दगी, ये बारीक और पतले लिबास और ये सिंगार, फिर नौजवान लड़के और जो है वो हवस परस्त लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत जिस वक्त पर्दे में होती है वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होती है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी जन्नती औरत को जमीन के ऊपर देखना है तो ऐसी औरत को देख लो जो गुजर जाए तो उसके बारे में अंदाजा ना हो सके कि ये बूढ़ी है कि जवान है, दुबली है कि इसका जिस्म मोटा है, इस शान से वो खातून गुजरती है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों का हाल क्या हो गया, मर्दों के मजमे में घुस रही है, मर्दों के मजमे में जा रही है, कभी
ڈراموں میں شرکت کر رہی ہے، غزلوں کی محفلوں میں شرکت کر رہی ہے، ایئر فون لگا کر کے کانوں سے گانے سن رہی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر جینس اور ٹی شرٹ شارٹ شرٹ آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا لباس بن چکا ہے۔ ام المومنین کہہ رہی ہے کہ جس کے بدن پہ پتلے لباس ہو میں اس کو مکمل مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج تو باریک اور پتلے لباس اس سے بڑھ کر اب مردوں کی طرح لباس ہو گئے۔ مردوں سے فون پہ لمبی لمبی گفتگو، ڈائلاگ بازی، عورتوں کا واٹس ایپ استعمال کرنا، عورتوں کا فیس بک پر بیٹھنا، عورتوں کا یوٹیوب پر بیٹھنا۔ میری بہن مجھے بتا، عورت کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ چلے بہت زیادہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کو نمبر نہ دے، لیکن آج کل کی عورتیں تو سب سے رابطے میں، لا الہ الا اللہ۔ امہۃ المومنین سے کہا گیا جب لوگ تم سے گفتگو کرے تو تم کرخ لہجے میں کلام کرو، تاکہ کسی کے دل کے اندر گندگی پرورش نہ پائے، دلوں کے مریضوں کے دلوں کے اندر گندگی پرورش نہ پائے۔ جو عورتیں بیوی ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے کائنات میں، ان سے کہا گیا کہ کسی سے بات کرو تو کرخ لہجے میں کرو، اور آج فون پر تو چبا چبا کر کے